Hey everybody, welcome to the online session of Manula classes. My name is Brijesh and in today's video we will be discussing 5 words from the Hindu newspaper, from the recent The Hindu newspaper. Why do we do this session? I have always told you that vocabulary is something that play a vital role in any competitive examination, be it CLAT, ALET, DU, SLAT, LSAT or any law entrance examination or any government examination as well. So that is why this series is helpful to any aspirant who is preparing for any competitive examination. So vocabulary are directly also asked and they are asked from the passage itself. So for CLAT this is very important because when you read a passage you have to have good understanding of each and every word to comprehend the passage as well. Let's say you are reading an extract and you get confused or entangled at a word that you do not know the meaning of. So that single word can mislead the information that you are reading. Maybe it wanted to say something else and you understood it something else. So that is why proper command over vocab is important. How do you learn them by heart is practicing every day. Let's say you read an article, you made a note out of those. Let's say you collected 10 words from that article. Now what you need to do is note them down and write the meaning of that particular word. Now reread the article with the meaning and understand the article, and the third time when you read it you do not need either the copy or the notes. So in that way a three-way process is needed. अगर आप इतना कर पाते हो, it just takes 30 minutes to do. So make sure whenever you are reading an extract you have to have a copy pen wherein you can note down the difficult word that you do not know in the first reading, and in the first reading itself make sure you are finding out the meaning of that particular word and noting it down. Second stage, now reread the article with the diary with the meaning so that you can inculcate those words in your heart, and then last time you do not need the note, you just need simply the article and reread it. You will find that you understood it completely. So this is why importance of words cannot be neglected or ignored. Now, so the first word in the list is dearth. What do you mean by dearth? देखो इंग्लिश के साथ दिक्कत क्या है कि एक ही शब्द के कई सारे शब्द होते हैं. So lackness is dearth, है ना? So scarcity is dearth. So dearth means a scarcity or lack of something, किसी चीज की basically कमी होना. So dearth of money, dearth of knowledge, dearth of capacity, anything which is in lack. Example, there is a real dearth in knowledge about how to manage money. देखो हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, बट अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है ये आप खुद ही सीखते हो, है ना. सो देयर इज अ रियल डर्थ. तो बोल रहा है यहाँ पे राइटर कि नॉलेज की कमी है किस बारे में, अबाउट हाउ टू मैनेज मनी, कि पैसे को कैसे बेसिकली मैनेज करना चाहिए, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ना, ऑल दिस थिंग. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द टेस्ट स्कोर्स रिवील्ड अ डर्थ ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. मतलब देखो ये क्लैट पैसेज को लेके मान लो आप करते हो कोई पैसेज एंड यू स्कोर जस्ट 1 out of 5, तो आपका क्या हुआ, आपने आपकी कितनी कमी थी कॉम्प्रीहेंशन में, इससे पता चलता है. सो टेस्ट का स्कोर पता चलता है डर्थ ऑफ कॉम्प्रीहेंशन से, मीन्स यू कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द पैसेज एंड यू एंड अप गेटिंग वेरी लेस मार्क. The synonym of dearth is scarcity and shortage. So now you can see there is a word dearth. It has 3 meaning before you. First one is lack of something, second is scarcity, and the third is shortage. So reading a word with a synonym also help you a lot whenever you are practicing. So make sure, take a word, see how it is used in a sentence, see how it has been used in the passage. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो मीनिंग आप जानते हो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसमें लिखा हो. सो यू नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट एज वेल. द एंटोनिम्स आर अबंडेंस एंड प्लेंटी. कोई भी चीज जब भरपूर मात्रा में हो उसे अबंडेंस कहते हैं एंड प्लेंटी बोलते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज लुडिक्रस. अब लुडिक्रस का क्या मतलब होता है? इट मीन्स रेडिकुलस और फुलिश, अनरीजनेबल और अनसुटेबल. अभी तक आपको नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 1, सम स्टोरीज दैट इनिशियली सीम्ड लुडिक्रस टर्न आउट टू बी ट्रू. सो अब देखो रेडिकुलस मतलब दैट साउंड्स फुलिश, जैसे कोई काम, अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि कोई स्टोरी जो शुरू में एकदम फुलिश लगता है, जैसे कि उसने 10 करोड़ की लॉटरी जीत ली, ये उसके बाद उसने एक स्कूल खोला, है ना. तो नाउ यू कैन सी कि ओके टर्न आउट टू बी ट्रू, कि हाँ
उसने सच में ऐसा किया था, मीन्स ही डिड बिग जॉब, तो इसका मतलब उसने सच में लॉटरी जीती होगी। सो इनिशियली समथिंग साउंड फुलिश, रिडिकुलस जिस पे लोग हंसें, सो रिडिकुलस इज लाफेबल, है ना, अनरीजनेबल और अनसस्टेबल, सस्टेनेबल, सूटेबल और रिडिकुलस और फुलिश, दीज आर सम वर्ड्स फॉर दिस वर्ड रिडिकुलस। सेकेंड एग्जाम्पल इज द लिडिकुलस मूवी, मीन्स जो मूवी है वही ऐसी है जिसपे लोग हंसते हैं, अबाउट अ डॉग दैट बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। आपको सुनकर ये अनरीजनेबल सा लग रहा है कि अरे एक ऐसे कैसा हो सकता है कि एक डॉग जो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री कैसे हो सकता है ना। सो द लिडिकुलस मूवी इज अबाउट अ डॉग दैट बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, सो किसी देश का प्रेसिडेंट बन गया एक डॉग, है ना। सो दिस वाज द थीम ऑफ द movie, so it sounds funny. Now synonyms are bizarre. Bizarre means again strange, something strange. अब जैसे यही सेंटेंस कितना स्ट्रेंज है, कॉमिकल जिसको देखकर आपको हंसी आए, एंड एंटोनिम्स आर नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी, जो कि नॉर्मल हो, सो दैट इज नॉट लिडिकुलस। सो आई गेस यू अंडरस्टूड द वर्ड लिडिकुलस। नाउ नेक्स्ट इज कंसेंट। अब देखो ये जो कंसेंट शब्द है दैट इज ऑल्सो यूज एज नाउन एंड वर्ब। नाउन के फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है, अब जैसे देखो कि ही डिड नॉट गिव हिज कंसेंट, तो उसने अपनी अनुमति नहीं दिया फॉर द यूज ऑफ हिज नेम इन दी एडवर्टीजमेंट। कोई एडवर्टीजमेंट है, उसने अपना नाम, किसी ने पूछा कि क्या मैं आपका नाम यूज कर सकता हूँ, ही सेड नो, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया। सो कंसेंट का मतलब होता है गिव परमिशन फॉर समथिंग और सम टू हैपन और असेंट। नाउ एज अ वर्ब कैसे यूज किया जाता है, वर्ब बनाना का मतलब यू कैन यूज ed फॉर्म और s फॉर्म और ing फॉर्म, एनी फॉर्म यू कैन यूज। सो ही वाज रिलक्टेंट एट फर्स्ट बट फाइनली कंसेंटेड, मतलब पहले पहले वो रिलक्टेंट था। नाउ रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को ना करने की इच्छा रखना, ठीक है। सो ही वाज रिलक्टेंट एट फर्स्ट, शुरुआत में, बट उसके बाद ही गेव हिज कंसेंट, मतलब ही कंसेंटेड। सो नाउ यू कैन सी अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन एंड अ वर्ब एज वेल। Now moving on to the synonyms, its synonym is agreement, मतलब हाँ मैं agree करता हूँ, and give permission. Now the antonyms are dissent and disagreement. The next word in the list is unprecedented. Unprecedented regularly word newspaper में आता रहता है। So precedent का क्या मतलब होता है, जो पहले हुआ चुका हो, और unprecedented का मतलब जो पहले नहीं हुआ हो। So never done or known before, unexpected. So unprecedented means, so we made an unprecedented plan, मतलब हमने पहले नहीं बनाया था उसे। Examples: the damage caused by the hurricane is unprecedented and has never been experienced before in this country, मतलब जो भी डैमेज हुआ है उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था हरिकेन के द्वारा। The second example is the internet has erased distance and given people unprecedented access to each other. जाहिर सी बात है कि पहले आज हम वीडियो कॉल पे कहीं पे किसी से भी बात कर सकते हैं, बट लास्ट डिकेड में या उससे पहले वाले डिकेड में ऐसा नहीं था, ऐसा लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लाइक पीपल यूज टू सेंड लेटर्स एंड पीपल यूज टू यूज पिजन्स टू सेंड मैसेजेस। तो वो ज़माना और आज का ज़माना बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। आज हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। देयर विल बी सो मेनी इन्वेंशन जो अभी हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बट आने वाले 10 सालों में दैट विल बी ऑल्सो पॉसिबल। सो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ है जो पहले नहीं हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड। नाउ द सिनोनिम्स आर अनमैच्ड, जाहिर सी बात है, और अनइक्वल्ड। एंटोनिम्स आर नॉर्मल एंड कॉमन। The last word in the list is that is defile. अब इसे बहुत ही ध्यान से समझना, एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। ये एक वर्ब है, तो इसका मतलब डिफाइल्ड भी हो सकता है, डिफाइलिंग भी हो सकता है। नाउ डिफाइल का मतलब होता है डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस, किसी पर्सन की प्योरिटी, किसी वस्तु की प्योरिटी, किसी स्थान की प्योरिटी को डैमेज कर देना, या मान लो किसी फाइल को ही डिफाइल कर देना, मतलब करप्ट कर देना। सो डिफाइल बेसिकली मीन्स टू करप्ट और टू डैमेज द प्योरिटी ऑफ और अपीयरेंस ऑफ। मान लो कोई सुंदर सा पार्क है, वहाँ पे जाके लोग लिटर करते हैं, सो कूड़े फेंकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो डिफाइलिंग, है ना। एग्जाम्पल इज द अल्टर हैड बीन डिफाइल्ड बाय द वेंडल्स। सो इसमें आपको 3 नए शब्द मिले, पहला तो अल्टर, दूसरा डिफाइल्ड, तीसरा है वेंडल्स। सो अल्टर का मतलब होता है कोई पवित्र स्थान, वेदी, जहाँ पे कुछ पूजा पाठ किया जाता है।
उसको क्या किया, डिफाइल्ड कर दिया, मतलब प्योरिटी उसकी ख़त्म कर दी गई। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ला दी गई हों जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हो धार्मिक दृष्टिकोण से। नाउ वेंडलाइज से बना हुआ, वेंडल मतलब ऐसे लोग जो वेंडलाइज कर देते हैं, चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। सो वेंडल मतलब उपद्रवी बेसिकली। सो नाउ द मीनिंग, द सेंटेंस इज द अल्टर हैड बीन डिफाइल्ड बाई वेंडल्स, मतलब ऐसा कोई पवित्र स्थान था जिसको कुछ वेंडल्स ने डिफाइल कर दिया किसी भी कारणों से, किसी को काम कोई ऐसी चीज लाकर या कुछ ऐसा करके। द सेकेंड एग्जाम्पल इज इट्स अ शेम दैट सच अ ब्यूटीफुल एरिया हैज बीन डिफाइल्ड बाय द रबिश डंप। तो देखो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि हम सब चाहते हैं स्वच्छ भारत हो, तो ये हमारा खुद का कर्तव्य है कि हम यहाँ वहाँ चीज़ें ना फेंकें, मीन्स डिफाइल ना करें किसी भी सुंदर सी जगह को, है ना। तो आप खुद भी इस बात का ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखें, और हम एक दूसरे को एनकरेज करें कि यहाँ वहाँ लिटरिंग करना इज डिफाइलिंग अ प्लेस, ठीक है। सो डिफाइलिंग मीन्स डैमेज कर देना किसी चीज़ की प्योरिटी को, या डैमेज कर देना किसी भी चीज़ के अपीयरेंस को, है ना। नाउ द synonyms are degrade or discreet. The antonyms are honor and praise. So let us revise what words we just learned today. The first word in the list was dearth, means किसी चीज की कमी होना. Ludicrous means something which is laughable, which on which people can laugh. It is foolishness, है ना, total. And the third word in the list was consent, जो कि यूज किया जा सकता है अनुमति और अनुमति देना, दोनों के ही सेंस में, means give permission for something or give your assent. The fourth word means second last word in the list is unprecedented, मतलब never done or known before, ऐसा कुछ भी जो पहले नहीं हुआ था, that was unprecedented. So there was an unprecedented landing of UFO, है ना, मान लो कोई भी चीज़ जो पहले आपने नहीं देखा था, aliens, anything, any device, any invention, anything. The last word in the list is defile. Defile means किसी की प्योरिटी को, किसी पर्सन की प्योरिटी को कैसे खराब कर देते हैं लोग, किसी स्थान की प्योरिटी को खराब कर देते हैं, किसी फाइल है मान लो उसे करप्ट कर दिया, वायरस आ गया, सो एनीथिंग विच कैन बी करप्ट, एनीथिंग विच कैन बी डैमेज्ड और इट्स प्योरिटी कैन बी डिफाइल्ड, ठीक है। So I guess you understood all those 5 words that we discussed in this today's video. Stay tuned for more such videos. Do subscribe to our YouTube channel for regular such informative videos, and you can also join our Telegram channel for complimentary passages wherein we publish passages for your CLAT preparation. You can join our social media networks for regular updates on all. Stay tuned and stay happy. Thank you.